Yes, good afternoon, student. Good afternoon, sir. Yes, so few students have not submitted their PPTs. Okay, ये है आपका ऋषभ, नंदिनी, राहुल सिंह, पवन, कौशल. ओके, बाकी बच्चे कहाँ हैं? Why they are not joining? Yes, why are not they join? Why are they are not joining the class? Yes, Gaurav, Shekhar, पता नहीं सर. ask them to join. ओके सर. एक्टिव तो है सारे सर, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर. ओके, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके, yes. Am I audible? Yes, am I audible? जी सर. ओके, सो ओजोन लेयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे एंड द केमिकल फॉर्मूला फॉर ओजोन इज O3. ओके, सो बेसिकली ओजोन जो है एक आपका is an isotope of, you can say, oxygen with three compounds combining forming O3. So ozone gas जो है ना continuously form होती रहती है and it is basically responsible for filtering out your UV radiation जो आपके आपके एटमॉस्फेयर से स्पेस से आपके अर्थ पर आ रहे हैं उनको ये फिल्टर कर देती है. So it's act as a filter for the UV radiation reaching the earth's surface. Okay, although this is a poisonous gas, if inhaled can be lethal for a person or animal. Okay, ये poisonous gas है but इसका काम अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो काफी important रोल ये प्ले करता है. So there is good ozone also. This ozone is found in the upper part of the atmosphere called the stratosphere. तो जिस पोर्शन में आपके एटमॉस्फेरिक पोर्शन में ही मिलती है that is your stratosphere and it acts as a shield absorbing the ultraviolet radiation from the sun and the UV rays are highly injurious to living organisms since DNA and proteins of living organisms preferentially absorbs UV radiation and its high energy breaks the chemical bond within these molecules. ठीक है, और इसकी वजह से क्या है बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. स्किन कैंसर इज मोस्ट प्रोमिनेंट जहाँ पे आपकी सोलर जो यूवी रेडिएशन की इंटेंसिटी जाता है उन कंट्रीज में आपका स्किन कैंसर और इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं. ओके, नाउ द थिकनेस ऑफ ओजोन इज द कॉलम ऑफ एयर अबव द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर. और उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है दैट इज डॉब्सन. राइट, डॉब्सन इज द यूनिट used for measuring your ozone. And ozone gas is continuously formed by the action of UV radiation on the molecular oxygen and also
डिग्रेड इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन स्ट्रेटोस्फीयर, कंटिन्यूअसली बनती रहती है और टूटती रहती है. There should be balance between the production and degradation of oxygen in the stratosphere. Of the late, the balance has been disrupted due to enhancement of ozone degradation by chlorofluorocarbons. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर जो कार्बन क्लोरीन कंपाउंड है, इट कंबाइंस विद योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये सबसे लीथल था. एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके डिओड्रेंट्स एंड योर रेफ्रिजरेंट्स से सबसे ज्यादा निकलते हैं. दैट्स व्हाई many refrigerating agencies और जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स की, नेशंस का मतलब है मेरा, स्टेट्स का मतलब है नेशंस, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की कि हम इसका एमिशन को मेंटेन करेंगे. वो कैसे मेंटेन करेंगे? हम काफी कुछ ऐसी चीजें जो हमारा रेफ्रिजरेंट हैं जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं है, इस तरह के रेफ्रिजरेंट हम यूज करेंगे अपने रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में. ओके, एंड CFCs find a wide use in refrigerant. जैसे मैंने बताया, CFC discharge is a lower part of the atmosphere, moves up and reach stratosphere. In stratosphere, UV rays act on them, releasing your chlorine molecules or chlorine atoms. Now chlorine degrades ozone, releasing oxygen molecules, with these atoms acting merely as a catalyst. Chlorine atoms are not consumed in the reaction. Hence, मतलब ये कंज्यूम नहीं होता है, बट क्लोरीन क्या करता है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है जो O3 को O2 प्लस O में कन्वर्ट कर रहा है. ओके, हेंस whatever CFCs are added to the atmosphere, they have permanent and continuously effect on the ozone layer. Although ozone depletion is occurring widely in stratosphere, the depletion is particularly marked upon Arctic region. पूरे पूरे अर्थ पे हर जगह से आपका ये एमिशन हो रहा है CFCs का, बट इनका एक्यूमुलेशन हो रहा है आपके आर्टिक रीजन में बहुत ज्यादा. दिस हैज रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ओजोन लेयर, कॉमनली नोन एज ओजोन होल. आपके आर्टिक ऊपर जो है ना, आर्टिक के ऊपर एंटार्क्टिका जो यहाँ पे रीजन है आपका नॉर्थ पोल पे, वहां पर एक बहुत ज्यादा देख पा रहे होगे, ब्लू वॉयलेट लाइन से आपको दिख रहा होगा एरिया, दैट इज द थिन पार्ट. आपकी जो थिकनेस है वहां पे कम हो गई है ओजोन की, उसकी वजह से क्या है, वहां पे आप फिल्टर नहीं कर पा रहा है यूवी रेडिएशन को, ये जो ओजोन लेयर है. तो यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली अब्सॉर्ब बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर. गिवन द ओजोन लेयर is intact but the UVB damage DNA and mutation may occur. This causes aging of skin, damage to skin cells and various type of skin cancers. In human beings, cornea absorbs UVB radiation and a high dose of UVB causes inflammation of cornea called snow blindness, cataract हो सकता है. Such exposure may lead to the permanent damage of cornea. तो एक प्रोटोकॉल थी, एक एग्रीमेंट था जो साइन हुआ, that was Montero Protocol, signed at Montero at Canada for this कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी ओजोन को. ओके, to control the emission of ozone depleting substances. Subsequently, many more effort has been made for the protocol have been laid down definite roadmaps separately for development and developing countries for reducing the emission of CFCs and other ozone depleting chemicals. Right? Okay. Yes, Rahul, roll number 34. यस सर. आपकी पीपीटी पेंडिंग है, आपने दी नहीं पीपीटी. हाँ सर, उसके बाद वो क्लास ही लगी, मेरे पास पड़ी है, पीपीटी देनी थी. अच्छा, और कौन था, हाँ जी. किस किस के नाम भेजे थे? आज देनी है आपको. यस सर. नाम बता देता हूँ मैं, राहुल, ऋषभ, नंदनी, पवन एंड कौशल. ओके, एक बार हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन राहुल यू कैन गिव योर पीपीटी. ओके, राइट. Degradation by improper resource utilization and maintenance.
आज लास्ट था, आज के बाद मैं लूंगा नहीं किसी की भी पीटी, बोल देना सबको। The degradation of natural resources can occur not just by the action of the pollutants but also by the improper resource utilization। कि डिग्रेडेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप वो कर रहे हो एक्सेसिव यूटिलाइजेशन, बट इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी आपका डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आप रैपिडली आप कटिंग कर रहे हो रोड्स के लिए, आपका प्लांट्स की, ट्रीज की, तो हो क्या रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, वहां पे लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं, बिकॉज सॉइल जो है लूज हो गई है। जो आपके प्लांट्स हैं उनकी रूट्स क्या करती हैं, कंबाइन करके रखती हैं, उसको पकड़ के रखती हैं सॉइल को, तो सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। सो द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल टेक्स सेंचुरीज, बट इफ इट कैन बी रिमूव्ड इजीली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है ना सॉइल की, दैट इज टॉप सॉइल, ठीक है। अगर और उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती, बहुत कम थिकनेस होती है। अगर वो रिमूव हो जाए तो आपकी लैंड इनफर्टाइल हो जाएगी। और ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, रोड्स चल रहे हैं, वहां पे रोड रोलर्स चल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो फर्टाइल लेयर है ना वो डैमेज हो जाती है, हट जाती है वहां से, एंड मेकिंग द सॉइल लेस फर्टाइल। दूसरा क्या है, ओवर कल्टीवेशन, ज्यादा से ज्यादा उपज यूज करना। जैसे एक बार आपने मान लो कोई फसल लगा दी गेहूं की, दूसरी बात उसको काटने के बाद तुरंत आपने दूसरी कोई चावल बो दिया या सरसों लगा दिया या आपने ज्वार बो दी, तो उससे होगा क्या, आपके जो लैंड है उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअसली आप उसे यूटिलाइज कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, दैट इज ओवर कल्टीवेशन। इट विल लूज इज फर्टिलिटी। नाउ अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, बहुत जल्द ज्यादा ग्रेजिंग करना, चरवाहा लैंड जो है उसको, डिफोरेस्टेशन जैसे पौधों की कटिंग, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हो, पानी ग्राउंड वाटर से निकाल के सीधा भर रहे हो, सीधा ऐसा नहीं है, आप स्प्रे इरिगेशन यूज करो, आप ड्रिप इरिगेशन यूज करो ताकि पानी आपका कम लगे, रिजल्टिंग इन एरिड पैचेस ऑफ लैंड। मतलब आप इतना ज्यादा पानी निकाल रहे हो ग्राउंड वाटर से कि इतना वो रिचार्ज हो नहीं पाता कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। when large barren patches extend and meet over time the desert is created। और ऐसे पैचेस जब बनते रहेंगे, barren मीन बंजर इलाके जब बनते रहेंगे, तो बहुत ज्यादा एरियाज मिलके एक डेजर्ट फॉर्म कर लेता है जहां पानी नहीं है ढूंढे से भी। इंटरनेशनली इट हैज बीन recognized that deforestification is a major problem nowadays, particularly due to the increased urbanization। क्योंकि आपको अगर urbanization करना है, you have to clear off the land, वहां पे प्लांट्स हैं उनको काटो, ट्रीज काटो, तो इतना ज्यादा आप एरिया कराओ हटाओगे तो उससे डिग्रेडेशन ही होना है। वाटर लॉगिंग की समस्या भी बहुत ज्यादा है, दैट इज इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू ओवर लॉगिंग इन द सॉइल। कुछ ऐसे लो लाइनिंग एरियाज हैं जहां पर पानी बारिश का इकट्ठा हो जाता है एंड कई महीनों तक वहीं खड़ा रहता है पानी, उससे भी आपकी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। ओके, beside affecting the crops, waterlogging draws salt to the surface of the soil। The salt is then deposited on as a thin crust on the land surface or start collecting at the root of the plant। This increase the salt content and inimical to growth of the crops, and it's extremely damage to the agriculture। Waterlogging and the soil salinity are some of the problems that has been come in the wake of the green revolution। लो लाइनिंग एरियाज हैं जहाँ पे आपका जो पानी है इकट्ठा हो जाता है, हाई हाई जो हाइटेड एरियाज है वहां से वो रन ऑफ होके नीचे आ जाता है, तो उस एरिया का जितना भी रन ऑफ था वो अपने साथ कुछ मिनरल्स लेके आता है, सॉल्ट ले आता है, और वो एकुमुलेट हो गए आपके नीचे लो लाइनिंग एरियाज पे जहाँ पानी काफी दिन तक खड़ा रहा। तो वहां क्या है, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस आप पता है, सलाइनिटी बढ़ती है, उसकी वजह से आपकी लैंड डिग्रेड हो जाती है। ओके, देन डिफोरेस्टेशन, यू ऑल नो कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई इज डिफोरेस्टेशन। पहले लोग क्या करते थे, झूम कल्टीवेशन करते थे, उसको बोलते थे स्लैश एंड बर्न इरिगेशन। वो क्या करते थे, पेड़ काटते थे, जलाते थे, वो लैंड क्लियर कर लेते थे, और वहां तब तक आप एग्रीकल्चर करते थे जब तक कि उसकी फर्टिलिटी लूज नहीं हो जाती। उसकी फर्टिलिटी लूज हुई, उसको छोड़ देते थे, फिर आगे जाते थे, जंगल काटते थे, फिर सेम प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। ओके,
एंड रिफॉरेस्टेशन अगर आप एक पौधा काटते हो तो कम से कम आप 10 पौधे प्लांट कीजिए। ओके नाउ एक छोटी सी कहानी है, दैट इज ये अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने चिपको मूवमेंट की स्थापना स्टार्ट किया था गढ़वाल हिल्स में 1974। इन्होंने क्या किया, ये पेड़ को काटने से रोकने के लिए द कम्युनिटी वहां की जो थी, दे हग द ट्री, वो अपने चारों तरफ ट्री के जो है चिपक जाते थे कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। वो थी चिपको मूवमेंट, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है डिफोरेस्टेशन हो रहा था, पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो वो जाके ग्रैब कर लेते थे पेड़ की तने को कि नहीं हम इसको काटने नहीं देंगे। ओके सो दैट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट मूवमेंट। और उन्होंने एक जैसे एक आई ओपनर था लोगों के लिए कि हाँ, कि ये सही कह रहे हैं कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेचर, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ट्रीज फॉर क्लीन एयर, फॉर क्लीन सराउंडिंग्स एंड फॉर अ ग्रीन अर्थ, राइट। तो कुछ इश्यूज हैं जो पुराने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पुराने हैं लेकिन स्टिल आज भी हैं, प्रोमिनेंट हैं, और उन पे काम करना जरूरी है, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके सो वी टच्ड ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट यहाँ पे इसका। ओके नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। यस, किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई समस्या, नो सर। नो सर, नो सर, कोई डाउट है, कोई नो ऐसा सर, ऑल क्वेश्चन क्लियर। जो आ रहा हो दिमाग में रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, ऐसे इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज, या ऐसा आपके आसपास कोई हो रहा हो दैट यू हैव नोटिस्ड एंड यू आर नॉट एबल टू क्वेश्चन देम कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड एनीथिंग एल्स। इस टाइम तो सर सारे पोल्यूशन से ही परेशान है बस। सो व्हाट आर यू डूइंग फॉर रिड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन? और आप अपनी कम्युनिटी में अगर ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए तो आप क्या करेंगे, यू थिंक? उसको समझा ही सकते हैं सर, उसके बाद तो क्या कर सकते हैं। नहीं समझाओगे कैसे, वो मानेगा थोड़ी ना आपकी बात। वही तो दिक्कत होती है, लोगों वो की आपकी बात समझते क्यों नहीं है। माने, जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे हम्म। उसको समझाने के लिए। और वो भी फैक्ट्स ऐसे जो वेरीफाइबल हैं कि भाई हाँ यार वो बंदा सही कह रहा है, राहुल सही कह रहा है। ओके अब लोग हैं इनको समझाओ, अरे पटाखे मत जलाओ, नहीं यार ये दिवाली एक साल में एक बार आती है भाई, पॉल्यूशन में मर जाओगे तभी क्या करोगे? ओके नहीं, यस सर। आपने पटाखे जलाए, नो सर। सो एटलीस्ट यू आर डूइंग द एफर्ट्स ऑन योर ओन लेवल। यस सर, वही बात है ना, खुद सुधरो देश अपने आप सुधर जाएगा। बस ठीक है, तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। मेरा तो बहुत मन ओके था कि सर। प्रेजेंटेशंस अच्छी हो, इस पे भी हम प्रेजेंटेशन मैं चाहता था कि इस पे भी प्रेजेंटेशन हो, हम इन्वायरमेंटल टॉपिक्स पोल्यूशन पे। पे हाँ पोल्यूशन नहीं, रिगार्डिंग। दे देंगे सर, इस पे भी एनवायरमेंटल पे क्या दिक्कत नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब हमारे पास टाइम नहीं है। है। अच्छा। ओके ओके। ओके नाउ आई हैव मेड यू होस्ट, यू कैन गो एंड ओके प्रेजेंट। माय स्क्रीन इज विजुअल। यस
सर बस आप ही सुनने वाले और कोई भी? सारे सुन रहे हैं। रिस्पॉन्स तो नहीं आया, सिर्फ आपका ही आप आया था बोलो ना, मेरे आप पास। बोलो ना। 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े। यू एड्रेस देम, दे विल रिप्लाई। एक सेकंड में। विजिबल है भाई। चलो गाइस, कोई नहीं, वे भी कर दो भाई अगर बोलने में दिक्कत हो रही हो तो। विजिबल है, देख रहे हैं। हाँ यही ना बात, चलो चलते हैं फिर। सो गाइस, आई एम राहुल सिंह और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो चलो जी, इसे शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे डिफाइन करा जाएगा? Human resource accounting is the process of identifying and reporting the investments made in the human resources of an organization that are presently not accounted for in the conventional accounting practices. In simple terms, it is an extension of the accounting principles of matching the cost and revenues and of organizing data to communicate relevant information in financial terms. तो ये इसमें क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में? जितना भी जो कंपनी का जो डाटा होता है, जो स्टाफ होते हैं, इनकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो रिवेन्यूज रहते हैं, कॉस्ट होती है जिसकी भी, वो सब डाटा कौन प्रिपेयर करता है? एचओ, मतलब ह्यूमन रिसोर्स करता है उसको प्रिपेयर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हेल्प्स द मैनेजमेंट टू कॉप अप विद द चेंजेस इन इट्स क्वांटम एंड क्वालिटी so that equilibrium can be achieved in between the required resources and the provided human resources. Okay. According to the American Accounting Association Commission on HRA, human resource accounting is the process of identifying and measuring data about human resources and communicating this information to various parties. In the words of Geoffrey M. Baker, human resource accounting is a term applied by the accountancy profession to quantify the cost and value of employees to their employing organization. Hmm. तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें कुछ बेसिक्स हैं एचआरए में। वो इसके टोटल 3 बेसिक्स हैं: वैल्यू, यूजफुलनेस एंड इंफॉर्मेशन। तो चलो जी। पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी स्टाफ होता है एक तरीके से वैल्यूएबल ही है, जो भी उनके लिए काम कर रहे होते हैं। यूजफुलनेस ऑफ मैन पावर इज डिटरमाइंड बाय द वे इट इज मैनेज्ड। यूजफुलनेस ऑफ मैन पावर भी हम इस बेसिस पे देख सकते हैं, जैसे अभी हमें मैन पावर मतलब कितनी नीड है। अगर हमें 10 की नीड है तो हम 10 ही रखेंगे, ये नहीं कि उसमें हम 5 रख लेंगे या फिर 15 रख लेंगे। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि इसमें अगर हम 5 रखते हैं तो हमारे पैसे सोचेंगे पैसे बचा लेंगे, लेकिन फिर हमारा काम नहीं हो पाएगा। अगर हम 15 रखते हैं उसमें सोचेंगे कि पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन वो काम की वहां पे दिक्कत आएगी। तो ये सब मैनेज कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स। Information on investment and value of human resource is useful for decision making. ये जो decisions, वही बात होगी, decisions कौन लेता है? Human resource। इन सब की क्या नीड्स हैं, सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में देखते हैं। डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी: पर्सनैलिटी, सेल्फ कंट्रोल, डिवोशन, क्वालिटी, स्किल, टैलेंट। और इसके कुछ मेन एरियाज हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। formulating policies and programs, decisions regarding cost reduction programs, training and development, recruitment and selection, manpower planning and control, conservation and reward of human resources, and last, making choices of what between various types of humans, investments and investments in other assets. और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? वो होता है डिटरमाइनिंग द आरओआई ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब एक क्वेश्चन आता है कि आरओआई है क्या, तो चलो ये बताते हैं। आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसे हम इज अ मेट्रिक यूज्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ आरओआई। Compare how much you paid for an investment to how much you earn to evaluate its efficiency. Okay. So next is checking the proper utilization of human resources. Next, quantitative information. Quantitative is a word that is used in record some data on a large scale. अगर हम किसी
लार्ज स्केल के बारे में बात करते हैं तो हम तब वर्ड यूज करते हैं क्वांटिटेटिव. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टू कम्युनिकेट द वर्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, ऑल क्लियर? इस पिक्चर से कुछ बता सकते हैं, क्या समझ आ रहा है किसी को? सर आप मत बोलना, आप तो बता ही दोगे कुछ ना कुछ. बता दो भाई. Yes. Rahul is asking something. Please answer कुछ भी his बोल दो, question. उल्टा सीधा ही बोल दो यार. Hello, Rahul. Hmm. हाँ भाई. So, there, according to me in this picture, I Yeah. think the topic which you are discussing, like the role of HR, so it is basically selecting a person which is suitable for a organization or maybe for, हम basically select कर रहे हैं इसमें जो एक बेस्ट बंदा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी काम के लिए. Yes, It's you are my view. little bit right. हाँ, कुछ कहना है और? Okay. हाँ, Yes. Okay. थोड़े बहुत सही है, लेकिन इसमें हम ये भी देख सकते हैं, मुझे लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, इसको हम अलग अलग देखें. जो हमारी लेफ्ट साइड हो गई, ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन जो इन सबको लीड करता है, और हमारे राइट साइड में हो गया तरीके से स्टाफ. तो इन सबको जो कनेक्ट रखता है वो कौन रखता है? जो रेड पर्सन देख सकते हैं, HR. वो जैसे हमारे साइड भी होता है, उनकी तरफ भी होता है. गॉट इट? Okay. Okay. तो ये. Let me make it more clear. Okay. यस सर. Rahul, you should have यस. adopted a different color for both two sides, because from same यस color सर, मैंने से. भी सोचा था लेकिन मेरे को Yes. मिला नहीं, मैंने Your इसलिए idea यही is कर very दिया. good. You have chosen Yes. these steps, but from this figure you can analyze कि आप ये same category के आ रहे हैं. You can differentiate के with whether they are staff or this is management, and here is the manager that is connecting link between these and these. But from this the same color represents means कि ये एक same category से belong करते हैं. So there Yes, should sir. be some Similar. distinguish between. आप इसमें नहीं कर पाओगे. Either you have changed the color for both sides, or you have put it on some height or something like that. तो अभी जो रामदत्त ने इंटरप्रिटेशन की, that was good and Yes, sir. पिक्चर के हिसाब से सही था, लेकिन वो हाँ आपने जी जो सर. आपके आइडियाज से वो मैच नहीं कर पाए. लेकिन आपका आइडिया अच्छा था, बट यू हाँ वर जी नॉट सर, वही एबल टू उसकी. एक्सप्रेस इट इन हाँ. इन अ बेटर वे. यस सर. ओके सर, आगे चले. ओके. So next slide is according to Rensis Likert. तो इसमें to furnish cost value information, and next to attain cost effective organizational objectives, and next is effective management of human resources, and next basis for asset control, and next aid in the development of management principles. So I think it is clear for all. सो नेक्स्ट स्लाइड इज एडवांटेजेस. इन सब के एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं या फिर क्या हैं? तो चलो देखते हैं. फर्स्ट एडवांटेजेस इज ascertaining cost of developing human resources, and next analysis of expenditure on human asset. वही बात होगी, एनालाइज करना, देखना, ये सब चीजें जो आती है. Help, and next is help management in planning and executing personal policies. Okay, and next is determining the adequacy of investment in human resources. And next and last is improving efficiency of employees. एम्प्लॉयज से कांटेक्ट में रहना, उनको समझाना और उनकी स्किल्स को एनहांस करना, ये सब करता है HR. उनको गाइड करना हर तरीके से. ओके. तो चलो हम इसके मेथड्स भी देख लेते हैं. मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. There are two types of methods in HRA. First is human resource cost accounting, and next is human resource value accounting. So basically, in first human resource cost accounting, there are sub three topics in this: historical cost approach, replacement cost approach, and opportunity cost approach. तो चलो इसमें क्या होता है. Human resource. Okay, इसमें measurements and reporting of the cost incurred to acquire and develop people as organizational resources. Next, deals with accounting for investments made by an organization in acquisition and developing human resources.
include accounting for the cost of personal activities and functions such as recruitment, selection, placements, and trainings. ये सब कौन देखता है? HR. So next point is accounting for cost of developing people as human assets. Accounts approaches क्या है इसकी देखते हैं. इसमें तीन इसकी अप्रोच आती हैं. फर्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्टर एंड सेकंड इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड थर्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो इसके जो सब थे वो देख लेते हैं हम. फर्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच. इसमें क्या आता है, किसने बनाया था, किसने डेवलप करा था इसको, तो वो है ब्रमेट. और ब्रमेट, फ्लेमहोल्ट्ज एंड पाइल. So next point is actual cost incurred on human resource are capitalized and written off over the expected useful life of human resources. And next point is procedure for capitalization and amortization remains the same for other physical assets. Okay. सो इसके हम मेरिट्स और लिमिटेशंस पे भी एक बार नजर मार लेते हैं. क्या होते हैं इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस. तो इसके जो मेरिट्स है उसमें सिंपल टू अंडरस्टैंड, जो ये अभी हमने पढ़ा है ये वाला हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, इसके मेरिट्स हैं ये. इसमें क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, कोई इसमें आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजी है और आपको आसानी से समझ आ जाएगा. इजी टू वर्कआउट, आप इसे बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट फॉलो. ट्रेडिशनल मीन्स ये मतलब पहले से ही चला आ रहा है. helps in finding out a return on human resource investment. Okay, इसकी limitations क्या हो सकती हैं? Difficult to estimate the working span of an employee. इसमें हमें एक estimate लगाने में दिक्कत होती है कि employee का working span क्या है. Extent to which the employee will utilize the knowledge is subjectively estimated. And next is difficulty in fixing the rate of amortization. And next, value of asset decreases with amortization. Okay. चलो नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच. तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में देखें किसने बनाया था या डेवलप करा था, वो है रेंसिस लाइकर्ट एंड एरिक जी फ्लेमहोल्ट्ज. ओके. तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट द फर्म विल हैव to undertake if existing human resources are required to be replaced with other persons too of equivalent experience and talent. Okay, and next is allows for changes in the cost of acquiring and developing employees. Okay, next is determination of the value of total human organization on the basis of assumptions. Okay, on the basis of assumptions that a similar organization is to be created from scratch. Okay, इसके भी हम जैसे मेरिट्स और लिमिटेशंस पे एक बार नजर मार लेते हैं. कुछ बड़ी बात नहीं है. इसके मेरिट्स हैं रियलिस्टिक वैल्यू एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड. प्रेजेंट ओरिएंटेड भी एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है इसमें. प्रेजेंट ओरिएंटेड इज द फोकस ऑन concrete factors, means solid factors in the immediate sensory present while ignoring or minimizing the abstract qualities relevant to the decisions that exist only in an anticipated future context or a remembered past context. Okay. तो इसकी जो लिमिटेशंस है उस पर भी एक बार नजर देख ले. इसमें है डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट फॉर एन एम्प्लॉय. और इसमें को does not focus upon human traits built over time. ओके. सो इसका लास्ट पॉइंट जो थर्ड है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच. इसमें डेवलप करा था इसको हैकीमैन एंड जॉन्स ने. हैकीमैन एंड जॉन्स. ओके. And इसका next point is values human resources on the basis of the economic concept of opportunity cost. And next, a human resource asset has a value only when it is scarce, that is, employment in one division is possible and not in the other division. Okay. So next is human resource value accounting. Okay. Calculation of economic values. Okay. Basis, difference in present and future earnings. Difference in present and future earnings of two similar firms is due to the difference in their human organization. Okay. Next point is economic value determined by obtaining the present value of future earnings. Okay, clear? इसके objections देखते हैं. Objections against human resource accounting. There is difference between other assets and human resources. Next is they cannot value together.
Next point is methods for valuation of human resources are different from each other. And last is human resource assets not recognized by tax laws. अभी तक ये tax laws द्वारा recognized नहीं हुए हैं. Human resource accounting in India. अब इसमें देखते हैं इंडिया में कब आया, कैसे, क्या था, इन सब के बारे में. Financial statements are prepared under the provisions of Companies Act. कौन सा एक्ट? 1956 के एक्ट के तहत ये सब काम करते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रोविजन in the act for the disclosure of human resource in final accounts. Okay, clear? And last point is leading sectors like, बहुत बड़े बड़े नाम है, BEL, ONGC, SAIL, NTPC, Oil, HMT, etc. Reports valuation of human resources in their annual reports. Okay, clear? Okay, sir. Thank you. Thank you, guys. There is my PPT. Okay, Rahul. Yes, sir. The PPT is good, but there is a certain lag in you are lagging in the Yeah. explanation part. It will be more beautiful if you explained a PPT in a better way. Okay, although very good. So Yes, sir. Sir, ये थोड़ा please first time है ना, appreciate. धीरे-धीरे enhance हो जाएगी skills. हाँ? फर्स्ट टाइम ऐसे कभी पीपीटी दिया ना, तभी थोड़ी दिक्कत हो रही थी. कोई नहीं, धीरे धीरे एनहांस कर फिर लेंगे देते क्यों skills नहीं हो? को. इसलिए तो that's why I have initiated this procedure के to take out your hesitation. निकाल के बाहर फेंको उसको. Why are you hesitating? You are not Thanks. able to express yourself in the people who are studying with you, your colleagues, your teacher, who's your good friend. How will you explain the big details and projects in front of the people you don't know? सर वो सही बात है कि कॉलेज में स्किल एनहांस नहीं करोगे तो कब करोगे, आगे तो टाइम Yes. है नहीं. So this is not a part of a curriculum, but still I have introduced this. मैंने लड़ झगड़ के बोला इनको, नहीं, I will do this. Okay, and I am taking this in my other time. मैं अपना टाइम अलग से दे रहा हूँ आपको, additional time. क्लासेस बहुत पहले Yes, ओवर हो sir. चुकी हैं सबकी, but still I am taking this because मेरा एक additional part लिया है मैंने. I am not paid for this. Yes, sir, I know. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So please Thank you. appreciate. If someone is doing something new, you should appreciate him so that he get motivated for further enhancement in their skills. और वो ऐसे बढ़ाने से आपको appreciation भी मिलता है. If you give something, Yes, sir. the return will be more beautiful. आप किसी को help करो, surely someone will help you and sometime. Okay. So Okay. please attend to your roll call. Abhishek, Akash, Ankit, Present, Ankit, sir. Ankit. Present, sir. Okay. Present, sir. Yes, sir. Ashish, Sir, present. Chandan, Yes, sir. Gaurav Kumar, Yes, sir. Himanshu, Yes, sir. Himanshu Pundir, Hirdesh, Present, sir. Present, sir. Jainis Kumar, Jitendra Rana, Karthik, Kaushal, Lakshya, Nandini, Pavan, Prince, Rahul 32, Rahul 34, Present, sir. Rajneesh, Ramdat, Sir, Ramdas. present 38. Yes, sir, present. Ronak, Yes, sir. Present.